काउंट कैसे दिखता है हमें? Now, am I audible? Am I audible now? Yeah, you're audible. Okay, fine. So I guess there was some issue. Okay. So I was saying a very, very warm welcome to everyone who is attending this webinar. All the students, congratulations to all MBBS aspirants who are here. आप लोगों ने अपना आज टाइम निकाला, so that's the first step that you have proved that you really want to become a doctor. And that is the reason why you all are curious to know about the information which will be shared in today's webinar. सबसे पहले हम बात करेंगे सारे स्टूडेंट्स जो आज यहाँ इस वेबिनार में हैं. सो एवरीवन हैज गिवन देयर नीट एग्जाम. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने नीट लास्ट ईयर नीट अटेम्प्ट किया था, बट देन ड्यू टू लो स्कोर दे टुक अ ड्रॉप ईयर एंड उन्होंने इस साल भी नीट दी. ओके. सबसे Yeah. So as I said that
जो भी लोग यहाँ पर है जिन्होंने नीट दिया है, मे आई नो देयर स्कोर जस्ट टू गेट एन आइडिया कि यहाँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है उनका स्कोर क्या है. यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. ओके, 485. Oh, great, Jyoti. So you have scored 632. Wow. You can also write the percentage along in PCB along with your NEET score to just get me a rough idea. So you can also write down your PCB percentage. Oh, wow. 73%. Great. Yeah, everyone please write in the chat box so that I can get a rough idea. Okay. Might be there are many students who are not ready to disclose their NEET score, not to worry. Okay. So now the major question is to get admission. Okay. जब हम बात करते हैं एडमिशन की, तो to get a medical seat in India is like catching a Virar train at peak time, right? So उसके लिए जो हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है एक मेडिकल सीट के लिए, उतनी ही स्ट्रगल या फिर मैं बोलूंगी उससे कई ज्यादा स्ट्रगल है to get a medical seat in India. So you all are aware कि how many students give NEET exam every year. So अगर मैं इस साल का काउंट बताऊं तो approximately 24 lakh students appeared for NEET examination this year. That's a huge number, right? 24 लाख लोगों ने हमारे इंडिया में नीट एग्जाम अटेम्प्ट किया इस साल. एंड आर यू अवेयर हाउ मेनी मेडिकल सीट्स वी हैव? उसके अगेंस्ट में हमारे पास उनको एब्सॉर्ब करने के लिए कितनी मेडिकल सीट्स अवेलेबल है? एनीवन हैज एनी आइडिया? I'll say just 1 lakh, approximately 1,10,000 seats. ये साल कुछ 5-6 हजार सीट्स और बढ़ी है. There are many government colleges जो open हुए हैं. So I would say 1,10,000 approximately medical seats we have in India to absorb these medical aspirants. So now the problem arises कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है वो बहुत कम है, और वहां आ जाता है मनी, राइट? करप्शन, डोनेशन, कुछ भी बोल लो उसको, राइट? सो यू ऑल नो कि हाउ मेडिकल सीट इज सोल्ड हियर. There are many students and who are actually paying crore of rupees for one medical seat. So अगर मैं आपको अमाउंट बोलूं मार्केट में जो चलता है टू गेट एडमिशन, ठीक है, so that goes up to it starts from 80 lakhs, it may go up to 1 crore 20 lakhs also, and people are paying, believe me, I know many students who have paid this much of amount for a medical seat. So you are now aware ki how is it, right? So the problem is awareness. Okay. बहुत बार हम जब स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि दैट रेदर देन पेइंग दिस मच ह्यूज अमाउंट जस्ट फॉर अ एमबीबीएस डिग्री, जो जस्टिफाइड नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है, बट देन व्हाई टू पे दिस मच अमाउंट रेदर देन डूइंग योर एमबीबीएस हियर, डू योर एमबीबीएस अब्रॉड. बट देन द मेन क्वेश्चन अराइजेस जो सबके दिमाग में आता है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो पेरेंट्स हो. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जब हम उनको कहते हैं कि आपने लास्ट ईयर ऐसा क्यों नहीं किया जब आपका नीट का स्कोर लो था, तो दे से अस कि हमें पता ही नहीं था कि ये भी ऑप्शन है. ओके, सो लेट मी टेल यू कि एमबीबीएस अब्रॉड का जो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये है रिकॉग्निशन. There are many parents, there are many students who are just confused कि हम डिग्री तो ले लेंगे बाहर से, but is that recognized? So सबसे पहले वो क्वेश्चन दिमाग से निकाल दो, because yes,
It is recognized by MCI. It is recognized by WHO. It is recognized by European Council. So वो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग से निकल जाता है तो आप आज के वेबिनार से काफी सारी इंफॉर्मेशन लेके जाओगे. So that is the reason, first wipe off that confusion from your mind about the validity part or recognition part. So अगर हम उस चीज को साइड में रखते हैं, so let's speak कि why to do MBBS abroad. Because question of course will arise कि क्यों करना है बाहर, right? So सबसे पहले हम बात करते हैं कि what are the benefits of doing MBBS abroad. So there are many top government universities. जैसे कि अगर हम रशिया की बात करें, so there are many universities which are state government funded universities, and they again are recognized as top universities as well. Okay, there are again one question arises कि अगर हम बाहर जाते हैं MBBS करने के लिए, so will the syllabus be in English language? So let me tell you that there is a rule now. So even if you go to Russia, even if you go to Georgia, even if you go to any other country for MBBS, the whole syllabus is in English, and now it's being taught in English. Yes, language will be taught to you. A local language will be a part of your syllabus. जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल बोलूं, अगर आप रशिया में जाते हो तो आप MBBS पूरी डिग्री इंग्लिश में पढ़ोगे, बट जब इंग्लिश के अलावा एक लैंग्वेज जो है वो आपका हमेशा सिलेबस का पार्ट होगा, विच वुड बी रशियन लैंग्वेज. एंड लेट मी टेल यू, ये आपको हेल्प करेगा बिकॉज जब आपकी क्लिनिकल इंटर्नशिप का टाइम आएगा तब आपको पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज जानना या उसका यूज आपको ऑफ कोर्स आएगा when you would be interacting with patients, because you all are aware that clinical internship is also a part of MBBS, right? फी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं, अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यस, इट इज अफोर्डेबल. अगर हम बात करें, हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया वो यही था that 1 CR, 1.20 CR तक students जो है they are spending just on MBBS degree, right? और अगर मैं आपको सिर्फ इसका एक कंपैरिजन दूं, so in that case अगर मैं बात करूं रशिया की या जॉर्जिया की, तो ऑलमोस्ट आप इसके 1/3 अमाउंट में अपना पूरा MBBS along with accommodation and food complete कर सकते हैं. Yes, you have heard it right. If I just give you an example, in Russia, in a good university, I would say that even in mere 20 to 25 lakhs, you can complete your whole MBBS. अगर मैं जॉर्जिया की बात करूं, you can complete your whole MBBS in 30 to 35 lakhs with accommodation and food. Question ये आता है कि इतना कम है तो शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड होगी, बट नो, in fact the quality of education is quite good. It is known in the market. जैसे अगर मैं रशिया की बात करूं तो रशिया is known from years for medical colleges, right? So रशिया के डॉक्टर्स they are known in the world. So again हम जब बात करते हैं क्वालिटी की, so there is no compromise in the quality of education, और ना ही लैंग्वेज बैरियर कोई होगा. ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होगी, whether it is MCI, Medical Council of India, or WHO. You would also be provided with the next coaching. There are many universities in Russia, Georgia, who prepare the student for national exit test from their 3rd year. So that support also you would be getting from those universities. So now, as you all are aware, that to get a license in India to practice, you need national exit test, right? So again, that test का preparation जो है from your 3rd year, these universities prepare you. There is no sort of donation.
That is the reason why the fees is low and not because the quality is compromised. The faculties are excellent. They are well known, or I would say teaching from or having, huge experience in the same field. Clinical internship will be provided. Cost of living is, of course, affordable. That is the reason. Infrastructure wise, even if you take a tour of any of the college in Russia or Georgia or Philippines, you would realize that yes, of course, there is no compromise in the infrastructure as well. जब हम बात करते हैं एमबीबीएस की, तो हाँ, सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स दैट गवर्नमेंट कॉलेज जो है उनकी इंडिया के कॉलेजेस की भी बात करेंगे. यस, सो इवन आफ्टर दिस वेबिनार यू कैन कनेक्ट टू अस फॉर इंडियन मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो. बट लेट मी टेल यू अगेन, जो मैंने चीज आपको बताई कि वो जो प्राइस रेंज होता है वो आपको भी पता है कि इंडिया में टू गेट एन एडमिशन एंड बाहर एडमिशन मिलने में बहुत फर्क है, right? And you all know that MBBS degree is not suffice, right? इंडिया में हर स्टूडेंट MBBS करने के बाद they will start preparing for NEET PG and they will definitely do their MD in any of the specialization, right? That because MBBS is not at all suffice. और तभी भी आपको कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है. So rather than investing a huge amount in MBBS, take a degree in affordable fees, take a degree of MBBS, and then the amount which you saved for your MBBS, you can invest at the time of completing your master's, that is your MD. Okay, so that is, of course, a benefit of studying your MBBS abroad. Now, when we speak about the myth, okay, so there are many myth, बहुत सारे ऐसे गलत फहमियां हैं which are attached to abroad MBBS. So सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद कभी इंक्वायरी ही नहीं करते हैं टू स्टडी MBBS abroad because they are like बहुत महंगा है. So it's a myth. ये एक बहुत बड़ा myth है that MBBS abroad is expensive. If I talk about the second myth, that is language issue. So language is not at all an issue. As I said, the complete degree is in English and it is taught in English. अब हम बात करेंगे एक ऐसे मिथ की जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं टू टेक एडमिशन, एंड दैट इज हाई नीड स्कोर. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे आके खुद कहते कि हमें पता नहीं था, अगर हमें पिछले साल पता होता तो शायद हम ड्रॉप ईयर नहीं लेते और एक साल पूरा वेस्ट नहीं करते और शायद अब तक हमारे एमबीबीएस का पहला साल भी कंप्लीट हो जाता, राइट? सो नीट स्कोर, हाई नीट स्कोर इज नॉट रिक्वायर्ड. पहली बात तो नीट इज फॉर इंडिया, right? NEET is required to take admission in India. Then why we ask for NEET score? आपने देखा होगा मैंने MBBS की वेबिनार शुरू करते पहले NEET का स्कोर पूछा. Reason being, if you want to come and practice in India to get a license to give the exam, to give your next exam, of course आपको NEET का स्कोर तब लगेगा. But NEET is not for taking admission abroad. If your vision is not to come to India, अगर आपने नीट अपियर नहीं भी किया है तो भी आप बाहर एडमिशन ले सकते हो फॉर एमबीबीएस, बिकॉज नीट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एमबीबीएस एडमिशन अब्रॉड. कोई भी कंट्री होने दो, आपको नीट जो है उसका रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडिया में है. हाँ, हम इसीलिए आपको पूछते हैं नीट का स्कोर ताकि आपके लिए इंडिया के डोर्स ओपन रहे और आप इंडिया में आके लाइसेंस के लिए एग्जाम दे पाओ आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस. एंड फॉर दैट वी जस्ट रिक्वायर यू नीट क्वालिफाइड. दैट इज जैसे इस साल का क्वालिफाइड है 164. So you just need to score 164 in your NEET and you are eligible to not only get admission abroad but also to come
after your completing your MBBS to come here in India to appear for next exam and take a license. यानी नीट का स्कोर सिर्फ यही रीजन से चाहिए. नीट अगर आपने अपियर नहीं भी किया है एंड योर विजन इज टू सपोज टू गो टू यूएस फॉर योर एमडी और टू गो टू यूके फॉर योर एमडी, इन दैट केस stop taking any drop year. Even NEET is not required. You can directly take admission, and then after completing your MBBS, you can proceed for the entrance examination of US or UK and take admission for MD there. Next myth, if we talk about, is safety part. Of course, that is a concern for all the parents who are sending you or who generally doesn't take this decision only for this reason. So let me tell you, बहुत सालों से यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि यही साल या पिछले कुछ सालों से स्टूडेंट्स ने वहां जाना स्टार्ट किया है. बहुत सालों से स्टूडेंट्स जो है वो रशिया, जॉर्जिया या किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जा रहे हैं. Okay, or they are of course safe, and that is the reason why parents are again sending their other children also. एक स्टूडेंट, मैं ऐसे कितने पेरेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने पहले अपने एक बेटे को भेजा, डॉक्टर बन गए, फिर उसके बाद दूसरे को भेजा. सो ऐसा नहीं है कि अगर सेफ्टी का इश्यू होता तो ऑफ कोर्स ये डिसीजन कोई नहीं लेता और शायद उनकी सीट खाली ही होती. बट देयर आर 90 मेडिकल institutes in Russia. Okay, there are many medical institutes in other countries, but still उनकी seats कभी empty नहीं होती है. Reason being, there are many students. Let me tell you, Indian students maximum बाहर वहां की seat occupy करते हैं. So that is again one of the reason that safety is not at all compromised. Career prospects are limited, so no, there are no limited career prospects. As I said, you can move out to any country. आप बाद में वहां से MBBS complete करके, as it is recognized worldwide, you can go to any other country for your MD also. Same time जो आपका यहाँ के लिए लगेगा वही same time, यानी कि 6 years की डिग्री है, 5.6 years to be very precise. Okay, this much time is taken for completing this MBBS, and there is no such kind of racism या Indian students को neglect करते हैं, ऐसा कोई incident हमने सुना नहीं है हमारे past students से. Moving forward to the next point, if we talk about the comparison part, so you can see the degree का जो duration है वो कहीं पर भी compromise नहीं है, right? आप जितना स्पेंड यहाँ कर रहे हो उतना, उससे कम इनफैक्ट मैं बोलूंगी आप स्पेंड करोगे अब्रॉड में, आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, राइट? 32, जैसे मैंने कहा रशिया को, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहां आप 20 to 22 lakhs में पूरा MBBS कंप्लीट करोगे. जॉर्जिया में इट वुड बी अ लिटिल बिट हायर साइड बिकॉज जॉर्जिया इज लिटिल बिट एक्सपेंसिव देन रशिया, सो इट मे कॉस्ट यू अराउंड 30 to 35 lakhs, but still affordable than what you would be paying in India to get this degree. Food and accommodation is similar, so whatever you are spending, जैसे अगर हम बात करें रशिया की, so 10 to 15,000 per month आपको accommodation and food आप दोनों bear कर सकते हो. Hospitals for internship, so this is again a big question, so that is of course available for rotational internship, clinical rotation, sorry. Mode of teaching is in English, plus the syllabus is in English. Exit test is of course applicable to both. So पहले जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि अगर आप बाहर से MBBS करते हो तो ही आपके ऊपर FMGE एग्जाम लागू होती थी टू गेट अ लाइसेंस, बट देन नाउ FMGE लाइसेंस जो है वो वाइप ऑफ कर दिया है गवर्नमेंट ने, और अब जो है नेक्स्ट एग्जाम जो है दैट इज एप्लीकेबल टू ईदर यू आर अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और एन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट. अगेन द वैलिडिटी जो इंडिया की डिग्री की है सेम दैट इज फॉर अब्रॉड डिग्री. इंटरनेशनल एक्सपोजर जो आपको इंडियन डिग्री में नहीं मिलता है दैट इज ऑफ कोर्स एप्लीकेबल फॉर अब्रॉड डिग्री. सो यू गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर, you sit along with students who are from different countries, you get to know what is going on in different parts of the world, you get to know कि क्या problems है. So ये सारी चीजें जो एक्सपोजर आपको मिलेगा वो शायद इंडिया में MBBS करने के टाइम दौरान नहीं मिलेगा.
Dual program की भी opportunity है. So there are many students, there are many colleges which are offering a kind of exchange program as well, जैसे कि MBBS along with आपका एक और कोर्स हो गया. सो ड्यूअल जो प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है वो आपको इंडिया में नहीं मिलती बट अब्रॉड में मिलती है. आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हो तो आप इंडिया में ही रहोगे, लेकिन अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हो तो यू कैन अगेन मूव बैक टू डिफरेंट कंट्रीज इवन फॉर प्लेसमेंट्स. टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो अब्रॉड approximately it would cost you 30 to 35 lakhs. वो भी मैं higher side में बोल रही हूँ. There are again options which are available lesser than that. But if you talk about India, of course 1.20 CR is the amount which generally student pay, and that is the fact कि student actually pay करते हैं. Now what would be our role in this? So again, we will help you out with the counseling part, with the university selection according to your budget. हम जो यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे आप वो यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरी रिसर्च कर सकते हो. देयर आर मेनी व्लॉग्स अवेलेबल बाय स्टूडेंट्स नाउअडेज ऑन यूट्यूब. सो आप लोग वो व्लॉग्स के जरिए भी पूरा, प्लस कॉलेज के टूर के वीडियोस जनरली अवेलेबल होते हैं. यू कैन सी द ईच नोक एंड कॉर्नर ऑफ कॉलेज ऑल्सो. registration में हम आपको help करेंगे. We will help you out with the documentation part. It's not like that you are going to do, or it would be a kind of आपके लिए trouble होगा कि कैसे करना है, कैसे जानना है. वो सारी चीजों में of course we would be there at each and every step. We would first counsel you. We would like to know your budget, and accordingly आपके score, आपके मार्क्स के हिसाब से हम आपको जो बेस्ट होगा आपके लिए वो सजेस्ट करेंगे. and then you can finalize and then we will move ahead. There are many steps like बहुत बार हमें documents translate करवाने पड़ते हैं. Your visa is involved. Then we need to take the approval from ministry where you are going to, whichever country you choose, right? Pre-departure, there are many students who haven't moved out of country and they would be moving first time. So of course हमेशा हर स्टूडेंट को डर होता है कि पहली बार इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं. सो इन दैट केस वी सेंड यू इन बैचेस. हम ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को भेजते हैं. एंड सेकेंडली आपके साथ में कोई भी एक पर्सन जो है वो आपको एकम्पनी करता है आपको वहां पहुंचाने के लिए. सो आपको वो इश्यू नहीं आता है. सो जो जनरली स्टूडेंट्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हमें मिलते हैं एमबीबीएस के लिए जो शायद कभी ट्रैवल नहीं किए अकेले. सो उनको वो इश्यूज नहीं आते हैं. सो वी विल हेल्प यू आउट इन ईच एंड एवरीथिंग. चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो कंट्री का सिलेक्शन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन हो, राइट? देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो शायद इनिशियली हमसे 4 से 5 बार हमारे ऑफिस विजिट करते हैं, ऑनलाइन काउंसलिंग लेते हैं, and then they decide. So that is completely fine. We will help you out with the initial registration formalities, even loan. So of course 30 to 35 lakhs, or even if you choose any university where the fees is 20 to 25 lakhs, so there also the major part is finance. So बहुत बार पेरेंट्स को पता है कि ये अमाउंट भी निकालना डिफिकल्ट होता है, तो we will help you out with the loan part. As I said, we will suggest you some universities wherein you would get next ka preparation, right? So even if you are planning to come to India again and then you are going to appear for your license exam, so uske liye bhi next ka preparation we would suggest you those universities jahan next ka preparation hota hai. एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप, आपका मेडिकल चेकअप, एवरीथिंग वी वुड बी लुकिंग एट. आपका वीजा स्टैंपिंग जैसे हमने बात किया, या फिर आपका ट्रैवल अरेंजमेंट. सो ऑल दीज थिंग्स वी वुड बी हेल्पिंग यू आउट. I have just sharing you a video of a university which is in Georgia, and you can have a look on this video. You would get an idea. Just for your reference, I have added here SU Georgia National University.
So there are many universities, but then the time is limited. So of course we can't see or we can't take a tour of each and every university. So this is a university, SU Georgian National University, which is in Georgia. So this was just for your reference. There are few pictures also here. So how the university is. So it's, you can see the infrastructure. As I said, there is no ways the quality is being compromised. You can see the classroom. You can see the lobby. Topmost medical faculties are available. The classrooms are, of course, ultra modern. So the learning experience is, of course, great. Robotic surgical training. So as you all know that this exposure is not available here. So that is also one of the part when you go there. Okay. So uh, the thing is that from when we started this webinar, the main purpose of doing this was that there are many students who are not aware. बहुत बार नीट स्कोर कम होने की वजह से ड्रॉप कर देते हैं इधर आइडिया, या घर वाले बोल देते हैं कि एक काम करो कुछ और कोर्स ले लो, राइट। सेकेंडली बहुत बार ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो 12th की स्टडीज कर रहे थे, राइट, और साथ में नीट का प्रिपरेशन विच इज वेरी डिफिकल्ट. देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु लव बायोलॉजी, हु लव ह्यूमन बॉडी, बट टू स्टडी ह्यूमन बॉडी, बट देन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स कम आने की वजह से नीट अफेक्ट हो गया, ऑफ कोर्स. सो यू ऑल नो कि नीट तो कॉम्बिनेशन है तीनों का. सो ये भी रीजन बहुत बार होता है दैट यू एस्पायर टू लर्न एमबीबीएस बिकॉज यू लव बायोलॉजी, बट सिर्फ केम और फिजिक्स में कम आने की वजह से नीट स्कोर कम आ गया, राइट. डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर, डोंट चेंज योर मिशन जो आपने आपके लिए फिक्स किया था व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, राइट. हर कोई यहाँ जो भी है आज वो एमबीबीएस यानी कि डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए उसने नीट अपीयर किया है. नीट कोई ऐसी एग्जाम नहीं कि किसी ने सोचा कि चलो एवं ही दे देते हैं देखते हैं क्या होता है, ऐसा तो है नहीं, राइट. सो डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस 1 year जस्ट टू स्कोर बेटर इन नीट नेक्स्ट ईयर एंड देन अगेन वही विराट ट्रेन, जैसा मैंने कहा, राइट. इनफैक्ट थिंक अबाउट इट, it's just a degree, of course, एंड उसकी वैलिडिटी मैटर करती है, कहाँ से किया वो मैटर नहीं करता. वंस यू गेट अ लाइसेंस, आप जब गाड़ी सीखते हो
राइट। फिर उसके बाद आप आरटीओ में एग्जाम देते हो और उसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है। ये मैटर नहीं करता है कि आपने गाड़ी कहाँ से सीखी, वंस यू हैव योर लाइसेंस विथ यू। सो अगर मेरे पास लाइसेंस है तो ये मैटर कोई नहीं करेगा, ना ही कोई मुझे पूछेगा दैट आप डॉक्टर जो है वो आपने कहाँ से सीखा, मेडिसिन आपने कहाँ से सीखा। वंस यू हैव योर लाइसेंस टू ट्रीट पेशेंट्स, so that is important. So the validity of degree, the recognition of degree is important. आपने कहाँ से किया वो मैटर नहीं करता है। once you are able to crack your next exam, यानी कि आपका लाइसेंस अगर आपके पास आ जाता है तो so think about it. I hope that I have given you enough information today, but of course a one-to-one session is always required when it comes to MBBS. So after this webinar, kindly connect for a one-to-one session wherein we would understand your problems, we would understand your vision, future goals आपके क्या है, and accordingly आपके बजट के हिसाब से उसको ध्यान में रख के हम आपको country plus university suggest करेंगे. So then you can take a wise decision regarding it, right? If you have any question, you can write in the chat box, and even you can see the numbers which are displayed. I am writing my number in the chat box. So even if you want to Hello, connect to ma'am. me personally, you can connect to me. Yes, Manoj. हाँ Yeah. मैम, जॉर्जिया में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें लाइसेंस लास्ट ईयर में मिलता है क्या? नहीं, लाइसेंस मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा है कि वो 6+3 के बाद लाइसेंस मिलता है, क्योंकि एनएमसी की गाइडलाइन जो नहीं, है मैं ना, आपको बताती हूँ तो एक्चुअली कैसा लाइसेंस होता है। मिलना चाहिए ऐसे उन्होंने बताया। देखिए कैसा होता है ना कि हाँ इंडिया में अगर आपको प्रैक्टिस करना है, आपको देखो हर कंट्री का लाइसेंस का अपना प्रोसीजर होता है, राइट? तो आप इंडिया में हाँ जब आप आते हो, एग्जाम देते हो, नेक्स्ट एग्जाम, तब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस मिलता है। बट देर आर मेनी सच हाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स, जैसे अगर आपने जॉर्जिया से, जैसे फिलीपींस बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए जाते हैं बिकॉज फिलीपींस और यूएस का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। ओके, सो अगर सपोज स्टूडेंट विजन रखता है, उसने ऑलरेडी अपना विजन सेट किया है दैट दे वांट टू डू देयर एमडी फ्रॉम यूएसए। ओके, सो जनरली स्टूडेंट आप देखोगे कि जिसको यूएस का विजन है ना, वो फिलीपींस जाएगा पहले। नाउ फिलीपींस में वो एमबीबीएस कंप्लीट करेगा और वहां से यूएसएमएलई की प्रिपरेशन करेगा और यूएस चला जाएगा फॉर हिज एमडी। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमडी फ्रॉम यूएस और यूके और कनाडा, आप अगर इंडिया आते हो, यू आर अलाउड टू ट्रीट पेशेंट्स। आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड हो गए टू ट्रीट पेशेंट्स इन इंडिया। सो आपके एमडी की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन अगर आपको इंडिया, देखो जैसा मैंने कहा नहीं, अगर हमें यूएस नहीं जाना है, इंडिया आना है, तो तो आपको नीट वो क्वालिफाइड स्कोर चाहिए विच इज 164, दैट इज इनफ। पीसीबी में 50% यस चाहिए। ओके, दीज टू क्राइटेरियाज अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप जॉर्जिया, रशिया कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर 6 years। या लाइसेंस मिलता है क्या आफ्टर 5+1 जॉर्जिया में? लाइसेंस फॉर व्हाट, वही मैं पूछ रही हूँ, मतलब इंडिया में प्रैक्टिस करने के ये, लिए आप बोल रहे हो ये ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, आपको नेक्स्ट एग्जाम देना ही पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी। अच्छा दैट एग्जाम। इज फॉर और एवरीवन। आप चाहे इंडिया से एमबीबीएस करो, चाहे आप बाहर से एमबीबीएस करो, नेशनल एग्जिट टेस्ट इज नाउ कंपल्सरी फॉर ईदर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट। आपको वो लाइसेंस के लिए अच्छा, एग्जाम देनी ही है। नहीं नहीं, लोकसभा में जो पिछली गवर्नमेंट थी ना, हेल्थ मिनिस्टर ने बताया कि आपको वो जहां भी आप पढ़ रहे हो वहां का वो गवर्नमेंट लाइसेंस देना चाहिए, ऐसा बोला था उन्होंने। हाँ, लेकिन इंडिया में अगर आपको इंडिया में ट्रीट करना है तो नेशनल एग्जिट टेस्ट इज कंपल्सरी। अच्छा अच्छा,
और यस, उधर का स्पेशल एग्जिट एग्जाम टेस्ट, और इसीलिए मैंने आपको बताया ना जॉर्जियन में बहुत होता सारी है या इंग्लिश में यूनिवर्सिटीज। होता है? या हाँ, वो सॉरी, उधर का एग्जाम जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या जॉर्जियन में इंग्लिश, होता है? इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश में होता है। कंप्लीटली इंग्लिश। नो, इंग्लिश। यस, मैंने इस हेलो बारे मैम। में जॉर्जियन यस, नेशनल यूनिवर्सिटी SEU जो है ना, उसके बारे में एक दो हाँ वीडियो हाँ, देखे हैं। तो उसका फीस स्ट्रक्चर क्या ओके। होगा अप्रोक्सीमेटली? 5,500 USD फीस है साल की। हाँ और आपका पूरा, हाँ। अगर मैं आपको अंदाजा दूं तो 32 से 35 लाख में आपका MBBS विथ फूड एंड अकोमोडेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके ओके। एक यस, लास्ट क्वेश्चन। हेलो मैम। अगर अगर यस। जॉर्जिया और इजिप्ट इन दोनों में कंपेयर करें तो आपके हिसाब से कौन सा अच्छा रहेगा? जॉर्जिया और इजिप्ट, इजिप्ट कायरो अच्छा, यूनिवर्सिटी, अलेक्जेंड्रिया। हाँ हाँ। okay. See, Egypt is also a good option. Nowadays, even students are looking forward for Egypt. अर्मेनिया है, अजरबैजान में बाकू है। सो यहाँ पर भी आजकल स्टूडेंट्स जा रहे हैं। बट देन अगर मैं बात करूँ फिर कंपैरिजन की, तो आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली जॉर्जिया इज बेटर। ओके ओके, थैंक यू। यस, हेलो यस, मैम। यस। मेरा एक डाउट था मैम। मैडम रशिया के ऑप्शंस बताएंगे? हाँ, सो आपको मैं, जैसा मैंने बताया कि दिस वेबिनार इज इन जनरल फॉर यू नो इम्प्रूविंग, और आई वुड से कि जो मिथ है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर करने के लिए आपको मैं ऑप्शंस 1 to 1 में आपके बजट के हिसाब से आई वुड रिक्वायर योर गोल्स, आई वुड रिक्वायर योर बजट, अकॉर्डिंगली आई कैन सजेस्ट यू यूनिवर्सिटीज। जैसे अभी बहुत बार क्या हो जाता है, स्टूडेंट्स कहता है मुझे मॉस्को में ही जाना है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी अदर एरिया। सो इन दैट केस हम आपको वही लोकेशन की यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे। बट हेलो। यस, यस, हाँ मैम, मेरा एक डाउट था। एक्चुअली मैं रशिया में एमबीबीएस करना चाहता हूँ, बट मेरे को एमडी, मतलब एमडी ऑस्ट्रेलिया से करनी है, तो मेरे को नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं देनी पड़ेगी आपको। सो इंडिया, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अगर आप यहाँ से एमडी करते हो तो इन दैट केस यू डोंट रिक्वायर नेक्स्ट एग्जाम। उधर का लाइसेंस इंडिया में चलता है ना? यस, ऑस्ट्रेलिया का? यस। ठीक है मैम। So I have put my number in the chat box. So even if you want to connect to me directly, you can ping me on WhatsApp, or you can give me a call after this webinar. Okay, we can even plan a one-to-one online session or offline session. हम लोग उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे. I have almost all the colleges in Russia, all the colleges in Georgia, and we would be giving you support throughout this 6 years. So अगर आपको ये 6 years में कोई भी issue आता है, you can reach out to us. So ऐसा नहीं है हमने admission करवा दिया और हमारा काम खत्म हो गया. इस दौरान अगर आपको कोई issue भी आता है, you can connect to us and we can connect to the university representative. और हम अपना best try करेंगे कि जो हमारे हाथ में होता है, of course हम उसको resolve करेंगे. मैम, रशिया और जॉर्जिया में, रशिया में मैंने वो ओरेनबर्ग यूनिवर्सिटी Yes, देखा है। Orenburg, yes. हाँ, ओरेनबर्ग और SEU, इन दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा? देखिए, रशिया के अपने एडवांटेजेस है, जॉर्जिया, अभी जॉर्जिया थोड़ा लिटिल एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें, आपने रशिया में कौन सा नाम बोला? ऑरेंजबर्ग। हाँ, सो रशिया में यस, सो ओरेनबर्ग। रशिया इज, सी, जॉर्जिया अभी बहुत पॉपुलर हो गया, स्पेशली आफ्टर यूक्रेन वॉर। प्लस हाँ अभी यूक्रेन से काफी स्टूडेंट्स जो बीच में ही स्टॉप हो गए थे, उन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जॉर्जिया ने ले लिया। सो अभी जॉर्जिया काफी पॉपुलर हो गया है. SU इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द among one of the top, almost top 5 यूनिवर्सिटी जॉर्जिया में उसमें आती है SU. ओके, सो अगर आप सोच रहे हो कि, क्योंकि आपका बजट थोड़ा सा लिटिल बिट 7 to 8 lakhs का फर्क पड़ जाता है व्हेन वी गो टू जॉर्जिया. सो अगर आपके बजट में आता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप SCU ही जाइए, बिकॉज उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी फैकल्टी, जो मैंने आपको अभी पिक्चर्स भी दिखाए थे, वो SCU ही मैंने आपको दिखाया था. सो दैट इज ऑफ कोर्स जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको रोबोटिक्स का जो एक्सपोजर बच्चों को मिलता है, सो दैट इज ऑफ कोर्स नोन. ऐसा है. प्लस मैम,
वहाँ का जो रोबोटिक रशिया में अक्सर स्टूडेंट्स, यस यस यस, रोबोटिक वो रशिया में नहीं है क्या एक्सपोजर, रोबोटिक एक्सपोजर? कुछ यूनिवर्सिटीज में है, बट जॉर्जिया में स्पेशली ये है, एसयू यूनिवर्सिटी में। और मैम रशिया की ओम स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कैसी है? ओम्स्क इज गुड, ओम्स्क इज गुड, यस हेलो। यस यस नमस्ते सृष्टि, मैम। या मैम, मुझे ये जानना था कि ओके, सपोज आई स्टडी माय एमबीबीएस इन रशिया, बट वहाँ पे वॉर का खतरा कुछ फिलहाल तो नहीं होगा ना? देखो यूक्रेन इसकी अगर हम बात करें तो हमने अभी स्टॉप कर दिया है, वरना यूक्रेन तो टॉप मोस्ट मैं बोलूंगी स्टूडेंट की प्रायोरिटी में आता था यूक्रेन। बट रशिया इज ऑफ कोर्स सेफ। अगर रशिया एक सुपर पावर कंट्री है, अगर रशिया Yeah. जैसी कंट्री पे अगर खतरा हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 ही हो सकता है फिर। Yeah, that's right. Right. Ma'am, actually because ये मैंने पूछा because I have few seniors जो लास्ट ईयर गए थे, not last year actually but before 2-3 years war के पहले, Okay. Okay. yeah, so they returned back to India and No, couldn't no, go no, no, back. रशिया से एक भी स्टूडेंट रिटर्न नहीं आया है डियर। रशिया से Ma'am, रिकॉर्ड है। I have, yeah, but लेकिन I have a senior, स्कूल से मेरे सीनियर थे वो। हाँ, मे बी बिकॉज ऑफ अदर सम रीजंस होंगे उनके, माइट बी दे हैवंट डिस्क्लोज्ड इट, बट रीजन ये नहीं हो सकता, बिकॉज लेट मी टेल यू, यूक्रेन से भी स्टूडेंट सेफली जॉर्जिया आए थे और जॉर्जिया में एडमिशन लिए थे। रशिया से नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट, फॉर दिस रीजन लेट मी टेल यू, कि इस रीजन से कोई भी स्टूडेंट रिटर्न नहीं आया था। हाँ, उन्होंने अगर खुद को सोचा होगा कि सेफ नहीं है, या पेरेंट्स ने बुला लिया होगा डर के, जनरली हो जाता है ऐसा, सो अलग बात है। यूनिवर्सिटी ने किसी भी स्टूडेंट को नहीं भेजा। और आज भी मेरे पास भी काफी सारे स्टूडेंट है जो मेरे टच में है और वो रशिया में पढ़ रहे हैं। इवन बिफोर द वॉर दे वेंट, 2-3 साल पहले जैसे वॉर हुआ था उसके पे पहले से गए हुए, और अभी एमबीबीएस ऑलमोस्ट कंप्लीट करने को है। एंड इवन इफ यू विश यू कैन रीड इन कोरा ऑल्सो, आई ऑलवेज से, क्योंकि वहां स्टूडेंट्स के जेन्युइन रिव्यूज होते हैं, तो आप वहां पर भी स्टडी कर सकते हो। वहां देख लीजिए अगर कोई स्टूडेंट रिटर्न आया है तो। Okay, ma'am, I'll just check. I'll just have a look once. Yes. So safety you, ma'am. is not at all a concern. Not to worry about it. Yes. Yeah, okay, ma'am. Thank you. Yeah. Okay. So I hope no more questions. If any question, you can of course ping me on my number, or you can give me a call. I'm just a call away. And please start your process. If you are looking forward to take admissions abroad, तो आप प्लीज शुरू कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है कि नीट एग्जाम का स्कोर आते ही एमबीबीएस के एडमिशंस जो है वो बढ़ जाते हैं, राइट? इंडिया के ऊपर, अगर आपको इंडिया से भी एमबीबीएस करना है, या आपको इंडिया से वेटरनरी का कोर्स करना है, या नेपाल से करना, आई हैव ऑप्शंस, ओके? So in that case, of course, you can connect to our counselors. We have options for that also. हम जनरली रशिया जॉर्जिया करते हैं बिकॉज इनका फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग आता है हमें स्टूडेंट से, सो इसीलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं ये कंट्रीज। बट स्टिल इफ यू वांट टू गो टू एनी अदर कंट्री ऑल्सो, वी विल हेल्प यू आउट। एंड जैसा मैंने कहा, इंडिया से भी अगर आपको एमबीबीएस करना है तो वी विल हेल्प यू आउट विद दैट ऑल्सो, बट यू नो हाउ इट वर्क्स एंड हाउ द कॉस्टिंग पार्ट वर्क्स, सो वी जनरली डोंट प्रमोट दैट। पर फिर भी अगर आपको इंडिया में ही रहना है और करना है तो लेट अस नो। ओके, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज सैटरडे अपना टाइम निकाला। एंड जैसा मैंने कहा, यही पहला स्टेप है दैट यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, और इसीलिए आज सैटरडे के दिन आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के स्पेशली ये वेबिनार ज्वाइन किया। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप विच यू हैव ऑलरेडी टेकन। ओके, again I'm very thankful to everyone who attended this webinar. Thanks a lot. Do connect to me after this webinar. Okay. Thank you so much. Bye-bye.